ओके, ये कल की है। Okay. Good morning, everyone. Am I audible to everyone? Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. One second. Have everyone joined? Sir, students are still joining. Please wait. Okay, we'll wait for them. Then we will start. Haan. The strength in the morning session. Around 40. Okay. Nikhil sir, you just check the chat box and then please maintain that record. How many Yes. students are available? Yes. You just note. Listen, everyone. Please write your name and roll number in chat box so that we can get your attendance. Sir, before 5 minutes of the end of the session, I will inform you. At that time, you have to check the chat, sir. Ravi, sir. Okay. Yeah, sir. I'm listening to you. Okay. Students, can Should you we please start? mute yourself? Yeah, everyone, please mute yourself. Because some sound is disturbing. Yes, Girish Rao, mute yourself better. Then, Who is Lenovo K6 Note? Please rename yourself. okay, all they are muted. Please rename Okay, yourself better. Okay, so right Maurice, now sir, it should is. I wait? Because 40 students strength. Yes. Right Okay, now sir. it is We will 29, wait. sir. Wait Yeah, for sir. 1 We minute, will wait sir. for. 1 minute, Sure, 1 sir. or 2 minutes. Okay, sure, sir. We'll wait for 2 minutes and then we'll start. We will start. Yeah. Because in the morning the 40 students was there. Okay, no issues. जय सर आहे तू Yes, Akash Sagwekar. Akash Sagwekar, हाँ सर please mute yourself. Nikhil sir, you just check it whether they are coming right now. You just inform them simultaneously. Yes. Please mute yourself, all of you. Those who are recently joined, please mute yourself. Yeah, sir. Now it's good strength. We can start. Yes. Yes, sir. Sir, you can start. Okay. Welcome everyone to third year. All the students are most welcome to third year, one of the most precious year of your career. I will first let me introduce myself. Barabar? My name is Professor Ravi Gupta. Barabar? I will be teaching applied hydraulics for SEM 5 degree third year students. Correct? So this session is based on practical. This is a practical session, applied hydraulics. Barabar? So what are all the practicals which are involved in applied hydraulics? We have to go through that, what precautions, what measures we have to take, and how we have to start.
We'll go through that part. Before starting applied hydraulics, you should have the prerequisite of a knowledge of fluid mechanics 1 and 2. It is most important thing. You should have a basic knowledge of FM 1 and 2. You should have basic knowledge of hydraulic machines and their equipments. You should have a basic knowledge of unit conversion, little bit. Otherwise, I am there. Next, basic knowledge of fluid properties, which you have already studied in FM 1 and 2. These are some of the prerequisites which you should have before starting applied hydraulics 2. Those whose FM 1 or 2 is a weak subject, for them, I will suggest at least go through all the properties of fluid, FM 1, that all properties what you have studied, unit conversion, basic unit conversion, go through them. At least for today, after this lecture, go through them all FM 1, जो भी property particles जो भी आपने पढ़ा के अंदर, go through them. Then, what are the course objectives? Why we are studying this subject? What is the course objective? To introduce the concept of dynamics of fluid flow and dimensional analysis. Means in this subject, we are going to study the behavior of properties of fluid in that movement, dynamic movement. What is the properties of that fluid? We are going to study about that. To study hydraulic machines like centrifugal pumps, reciprocating pumps, and turbines. These are the heavy machineries or equipments. With the help of this, we generates electricity. आपने सुना रहेगा hydroelectric power plant, सुना रहेगा बस इतना, correct? But ये सब machines, उसके अंदर अलग-अलग types के machines होते हैं, such as centrifugal pumps, reciprocating pumps, and turbines. ये सब अलग-अलग machines. ये सब machines कहाँ use होते हैं? बहुत जगह. Jet में use होगा, उसके बाद hydro power plant पे use होगा, pump में use होंगे. तो ये सारी machines के ऊपर इसके mechanism, इसके working, properties इसमें क्या follow होगा, वो सब कुछ study करने वाले in this course. Next, to study the mathematical techniques used in research work for design for conducting model tests. These are the objectives. If I am talking about research work, so those who are opting for research, जिसको FM में या hydraulics के अंदर अपना future career करना है as a research worker, correct? For them, dimensional analysis model is too important. बराबर? Dimensional analysis जो topic है, उनको बहुत अच्छे से और प्यार से करना रहेगा. करेक्ट? उसके अंदर क्या होता है, जो पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, दे एनालाइज ऑल द फॉर्मूलेस इन एन इक्वेशन फॉर्म. वो इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग रीलिंग्स मेथड रहेंगे, मॉडल एनालिसिस रहेंगे, वो सब कुछ हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. करेक्ट? एंड द टेस्टिंग रहेगा. नेक्स्ट, टू इम्पार्ट द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड फ्लो एनालाइज्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ. बराबर? वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द फ्लूइड्स in our course. To understand the uniform and non-uniform flow through open channel. This is one of the most important topic as academic point of view, as career point of view also. Because as a civil engineer, our main aim or intention is to design the channel, artificial channel, if we are working as a hydraulic engineer. So we should have a great knowledge about the basic concept, design, properties, economical condition of the channel. So to understand the uniform and non-uniform flow of the open channel, we are going to study about that. Next, to study design of open channel and understand the concept of surface plane and hydraulic jump. It is also a part of non-uniform and uniform flow only. In this, we are going to study design and analysis of economical channel. Now, what are the outcomes? These are the objectives. What we are going to study. These are the objectives, you can say. But what are the outcomes? What is the main intention after studying this subject? What are concept? What are basic knowledge we will get from this subject? So starting with the very first outcomes, at the end of the course, after studying this subject, at the end of this course, student will be able to apply the concept of fluid dynamics to solve bend pipe and sprinkler problem. If I'm talking about bend pipe, तो बैंड पाइप स्टूडेंट्स जो भी अपने घर पे पानी आता है, करेक्ट, वो स्ट्रेट पाइप तो रहता नहीं है, करेक्ट, देयर आर सम बेंडिंग, हर जगह बेंडिंग होते देयर विल बी सम लॉसेस इन द पाइप. बराबर? देयर तो सारे लॉसेस होंगे, वेलोसिटी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा. सो व्हाट विल बी इफेक्ट्स? वो बेंड की वजह से क्या इफेक्ट गिरेगा अपने प्रॉपर्टीज पे? वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर प्रॉब्लम. ओके, so if I'm talking about sprinkler problem, who is Rahul Kannan, roll number 9? एक बंदे को बोला मैंने म्यूट करने के, अनम्यूट करने के, तो एनीवन स्टूडेंट
Rahul Kannan. Unmute yourself, beta. Okay. Okay. Rahul Kannan. Yes, sir. हाँ. Have you heard this sprinkler word? Have you ever heard this word sprinkler? Yes, sir. No. अच्छा. In your school section, you have studied irrigation, drip irrigation and sprinkler irrigation. Have you heard this word? Drip irrigation and sprinkler irrigation, Rahul? Yes, sir. Yes. तो उसके अंदर जो इरिगेशन होता था, तो उसमें जो स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर स्प्रिंग टाइप कुछ रहते थे, एंड उसके थ्रू रोटेट होके पानी जो भी अपना ये हिली रीजन रहेगा या तो फिर फार्म रहेगा, इन दैट वी प्रोवाइड वाटर, वी डू इरिगेशन. करेक्ट राहुल? सुना है? So याद नहीं सर. याद नहीं. ओके. तो ओके, म्यूट योरसेल्फ राहुल. Okay, इफ आई एम sir. टॉकिंग अबाउट स्प्रिंकलर इरिगेशन स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी इरिगेशन पर्पस के लिए जो पाइप या मैकेनिज्म से वी प्रोवाइड वाटर टू द फील्ड और क्रॉप, बराबर, जो मैकेनिज्म यूज होता है दैट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन. तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है, कुछ तो कंडीशंस रहते हैं, कुछ तो प्रॉपर्टी फॉलो करता है. करेक्ट? तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम लोग इसके अंदर, बराबर. तो उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंकलर प्रॉपर प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसकी इक्वेशंस देखेंगे, उसके कंडीशन देखेंगे, कौन सा लॉ फॉलो करता है वो. करेक्ट? वो हम लोग पढ़ने वाले इसके अंदर. नेक्स्ट, तो वो आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट वी विल कम टू नो इट्स मैकेनिज्म, उसका वर्किंग पता चलेगा, उसका लॉ पता चलेगा, बराबर, वो कैसे काम करता है. एनालाइज डायमेंशनल प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन मॉडल लॉस. एनालाइज डायमेंशनल प्रॉब्लम्स एंड मॉडल लॉस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर कुछ इक्वेशंस रहेंगे, कुछ कंडीशंस रहेंगे जो रिसर्चर यूज करेंगे टू रिसर्च और टू एनालाइज, बराबर. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम, डायमेंशनल एनएल प्रॉब्लम्स एंड मॉडल लॉसेस के थ्रू, स्टूडेंट a researcher will be easily able to explain all the equations, एक के बाद एक सारे इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता है विद प्रूफ. एक्सप्लेन द वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ कपलन, फ्रांसिस एंड पेल्टन व्हील टर्बाइंस. ओके, प्लीज एक जन कोई भी अनम्यूट हो जाओ, कोई भी एक जन. एनीवन हु इज अवेयर ऑफ टर्बाइंस वर्ड सुना है? एनीवन? और शुड आई टेक अ नेम? जिसने भी टर्बाइन वर्ड सुना है. अक्षय, रोल नंबर 36. आई एम टॉकिंग टू अक्षय, रोल नंबर 36. अच्छा, फैजल खान, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. फैजल खान. क्या फैजल? फैजल? No, beta, you are not audible. Your voice is not coming. Unmute yourself first. Unmute yourself. Okay. There will be some issue with your mic. उसके लिए काम नहीं कर रहा है. ठीक है. कोई बात नहीं बेटा, उसको इशू ठीक कर लेना. अभिषेक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. हाँ सर. हाँ बेटा. टर्बाइन वर्ड सुना आपने कभी? टर्बाइन वर्ड? हाँ. Used to generate electricity. कहाँ सुना ये वर्ड? परफेक्ट. टर्बाइन वर्ड एकदम सही बोला बेटा आपने. यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बराबर. ये टर्बाइन का काम रहता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना ही है. बट उसके अलग अलग टाइप के टर्बाइन होते हैं, बराबर. अभिषेक, अलग अलग टाइप के टर्बाइन होते हैं. जैसे कि कपलन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, पेल्टन व्हील टर्बाइन. प्लीज म्यूट सेल्फ, अपने आप को म्यूट कर दो. तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने सुना ये वर्ड आता है टर्बाइन, बट उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स. हर जगह एक टाइप का टर्बाइन यूज नहीं होता है. करेक्ट? डिपेंडिंग ऑन इट्स वेरिएशन, इट्स कंजम्पशन, इट यूज, बराबर, और कितना अपने को वहां पे सोर्स ऑफ वाटर मिल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, या कौन से रीजन में हम अप्लाई कर रहे हैं, बराबर. बेस्ड ऑन इट्स रीजन वी इंस्टॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन. अलग अलग टाइप के टर्बाइन. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत मजा आता है पढ़ने के लिए. फ्रांसिस, कपलन एंड पेल्टन व्हील टर्बाइन. अपने कॉलेज में भी ये सारी टर्बाइंस अवेलेबल है. सारे टर्बाइंस है अपने पास, रियल एक्चुअल टर्बाइंस है अपने हाइड्रोलिक्स लैब में.
जहां अपना सिविल डिपार्टमेंट है उसके बाजू में जो एफएम का लैब है वहां पे ये सारे टरबाइन है अपने पास, फ्लांसिस है, कपलन है, पेल्टन है। Participants आपको are एक्चुअल फोटो 50. दिखाऊंगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बरोबर बघ ना प्लीज सेंटरला चेहरा आहे. प्लीज म्यूट Everybody योरसेल्फ। requested to mute yourself. Just Shingnapur. ओके, नेक्स्ट फोर्थ आउटकम्स देखेंगे हम लोग इसका। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन चैनल हाइड्रोलिक एंड मेजर डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल। करेक्ट। हमारे पास भी एक छोटा सा इक्विपमेंट है अपने हाइड्रोलिक्स लैब में, जो एफएम का लैब है, आपने देखा है वहां पे एक ओपन चैनल हमने एक छोटा सा आर्टिफिशियल डिजाइन किया हुआ है। करेक्ट। ओपन चैनल कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल, दो टाइप के होते हैं। तो उसके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके फ्लो पढ़ेंगे, इक्वेशंस पढ़ेंगे उसके ऊपर। करेक्ट। और उसका यूज क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वी विल बी स्टडीइंग। बराबर। तो ये हम लोग को पता चल जाएगा आफ्टर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। ये सारे आउटकम्स है स्टूडेंट्स आफ्टर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट और आफ्टर स्टडीइंग दिस कोर्स you will come to know about this all things. Identify the occurrence of hydraulic jump and its parameter. After studying this subject, you will be able to identify the hydraulic jump and its parameter. Correct? Next, explain the uniform flow, non-uniform flow, and establish mathematical relationship between them. Barabar? With the help of this course, we will be able to easily distinguish between what is uniform flow, what is non-uniform flow, and establish the mathematical expression between them. Am I audible to everyone? Audible, sir. You are audible. Yeah, okay, sir. Thank you, Nikki, sir. Okay, these are the main 6 outcomes, students. After studying this course, you will be able to understand. Correct? Proceeding further, now we are talking about our practical, because this is a practical session. So what are the credit assigned, number of hours assigned, or number of marks given to this subject? We will go through that. If I'm talking about your applied hydraulics, the credit assigned to this subject is 1 credit. Correct? And number of teaching hours for practical session is 2 hours, as per our timetable, as per Mumbai University. Number of hours assigned to our subject is 2 hours. Is anyone asking some question? Mohammad Sufyan Qureshi, are you asking some question, beta? Hello, Mohammad Sufia. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you have to unmute yourself. Okay, he has muted himself. Okay, done. Chalo. If I'm talking about your applied hydraulics, credit assigned is 1. Okay. Next, teaching scheme, credit is 1. Number of practical number of practical hours is 2. Correct. And term work marks is 25 marks. There will be term work, and how term work distribution will be done, I will inform you. Correct. And oral marks is 25. Means total 50 marks of your practical. But the credit assigned over is 1, and the marks assigned to it is 50 marks. Out of which final semester oral exam Viva, you can say 25 marks and 25 marks for your term work. Correct? Total 50 marks. And if I'm talking about theory, term test 1 and term test 2, 20 marks. Out of that, average will be taken of 20 marks, and final exam will be of 80 marks. Total 100 marks. If I'm talking about total theory plus practical, it will be around 150 marks. Okay, these are the number of practicals which have been assigned by Mumbai University to our subject. Okay, so list of experiments. Any 6 as per Mumbai University is told to us or informed to us, you can say any 6 out of 9 practical we have to perform. Correct? Impact of jet, we can perform easily 7 to 8 practicals because we are having all the equipments in our lab. Impact of jet on flat plate, inclined plate, and curved plate. This is our first practical, which in this instrument we are already having. Correct. Second is performance of Pelton wheel, full gate opening. This instrument is also we are having. Third one is centrifugal pumps. Barabar. Next one is Kaplan turbine, Francis turbine. Performance of Kaplan and Francis turbine. We have to check its performance. We will be actually performing this all practicals with this all turbines are available in our hydraulics lab. Next is determine the chassis or roughness constant, you can say. This is a constant value, chassis constant.
It was a scientist. He has derived a constant which help us to determine the velocity through the channel. Correct. Next is study of gradually varied flow. In this topic, we are going to study about the gradually varied flow. ये सारे प्रैक्टिकल स्टूडेंट हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स और हम करेंगे सारे प्रैक्टिकल्स. करेक्ट. स्टडी ऑफ हाइड्रोलिक जंप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस प्रैक्टिकल इज आल्सो परफॉर्म. ये प्रैक्टिकल हमारे ओपन चैनल के ऊपर होता है, जो आर्टिफिशियल ओपन चैनल हम लोग के पास है. एफएम के लैब में एक बड़ा सा इक्विपमेंट रहेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, इसका फोटो है एक्चुअल मेरे पास. एंड लास्ट वन इज कैलिब्रेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फ्यूम एंड स्टैंडिंग फ्यूम. ये हम लोग नहीं करेंगे. करेक्ट. तो ऊपर के 8 प्रैक्टिकल्स हम लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोलिक लाइफ. Though Mumbai University has told 6 practicals, but we can easily perform 7 to 8 practicals. We are having all the equipments. Okay. Okay. Now we will talk about your term work distribution marks और term work marks कैसे दिए गए हैं, बराबर. So if I am talking about assignments, तो Mumbai University ने कुछ guidelines दिए हैं which we have to follow for your assignments. Correct. Total there are 6 assignments should be completed covering all the modules in the syllabus. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, Mumbai University बोल रहा है. Correct. If I am talking about assignments, तो आपके मॉड्यूल देखो, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो आपका पहला मॉड्यूल है स्टूडेंट. सेकंड मॉड्यूल है डायमेंशनल एनालिसिस. थर्ड मॉड्यूल है इंपैक्ट ऑफ जेट. फोर्थ मॉड्यूल है हाइड्रोलिक टरबाइन. फिफ्थ मॉड्यूल है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. और जो फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज फ्लो थ्रू ओपन चैनल. करेक्ट. तो हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज फ्लो थ्रू ओपन चैनल. रीजन बिहाइंड दैट इज, क्यों सर ऐसा क्यों, जो अपना लास्ट मॉड्यूल है उसको आप पहले कवर क्यों कर रहे हो? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपके जो सारे प्रैक्टिकल्स है, मेजर प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, that is based on flow through open channel. So before covering this topic, it won't be possible for us to cover the practicals. Correct. So it is necessary to cover your last module, that is flow through open channel. Then only we can easily run our all practicals. बराबर. उसके लिए हम लोग फ्लो थ्रू ओपन चैनल काफी अच्छा टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग कवर करके लेंगे. बराबर. देन हम लोग टरबाइंस पे जाएंगे. बराबर. बिकॉज अपने 4 प्रैक्टिकल्स, जो 6 प्रैक्टिकल्स में से मेन जो 4 प्रैक्टिकल्स है दैट इज बेस्ड ऑन फ्लो थ्रू ओपन चैनल. दैट्स व्हाई फ्लो थ्रू ओपन चैनल टॉपिक्स हम लोग लेने वाले हैं. बराबर. दैट विल बी आवर असाइनमेंट नंबर 1. टोटल देयर आर 6 असाइनमेंट्स. ज्यादा असाइनमेंट्स के बर्डन नहीं रहेंगे, टेंशन मत लेना. ओके. मुंबई यूनिवर्सिटी ने टर्म वर्क मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइंस बोला है. The marks for term work, देख लेते हैं इसको कैसे है. Shall be judicially awarded for the various component of term work depending on the quality of term work. बराबर. आपका term work ही डिसाइड करेगा, आपका quality of work ही डिसाइड करेगा कि how much term work you deserve. बराबर. The final certification and acceptance of the term work warrants the satisfactory performance of the laboratory work by the student and appropriate completion of the assignments. Yes. For term work marks, it is mandatory that students should complete their experiment work as well as their assignment works. The following weightage of the marks shall be given for different components of term work. बराबर. तो term work ऐसा नहीं कि आपने complete कर दिया तो आपको term work के marks मिल गए. तो इसके भी कुछ guidelines है, कुछ rules है which we have to follow. Okay. If I'm talking about your term work lubricase, बराबर, तो lubricase for term work, or you can say distribution for your term work marks. Correct? तो इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला है रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स. बराबर. आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल आपको उसका एक रिपोर्ट रेडी करना पड़ेगा. बराबर. एम, एपेरेटस, प्रोसीजर, ये सब फॉलो करना पड़ेगा. तो उसके है टर्म वर्क के 10 मार्क्स. बराबर. उसके लिए 10 मार्क्स दिया गया है फॉर योर एक्सपेरिमेंट्स राइटअप, यू कैन से. बराबर. नेक्स्ट योर असाइनमेंट्स. जो असाइनमेंट्स आप कंप्लीट करोगे बेस्ड ऑन योर कैसे बोल सकते हो आप लोग खुद जो जितना राइट कर रहे हो. बराबर. कॉपी पेस्ट करने का मार्क्स नहीं होता है स्टूडेंट, बी क्लियर. मार्क्स इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज. बराबर. योर डेडिकेशन, वो सब पे मार्क्स रहता है स्टूडेंट. डेडिकेशन आप समझते रहो कैसे करते हैं. मार्क्स आप कैसे, जैसे मैंने कोई सम सिखा दिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसकी न्यूमेरिकल्स अगर आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए ट्यूटोरियल में, तो आप कैसे कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर रहे हो, उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर रहे हो, कौन मेरे को पहले बता रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, ये सब के ऊपर मार्क्स रहेगा स्टूडेंट्स. करेक्ट. इंटरेक्शन इज मैंडेटरी स्टूडेंट. आपको नहीं समझ रहा है, आप चुप बैठोगे तो वो कुछ हेल्पफुल नहीं होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट योर अटेंडेंस. योर अटेंडेंस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल दैट कंटेन 5 मार्क्स. करेक्ट. तो ऐसे मिला कि आपके 25 मार्क्स का लुब्रिकेस रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है आपके टर्म वर्क्स के. ओके, देयर इज अ रनिंग ऑफ टाइम, 10 minutes is remaining. I will finish this PPT and after this, एक सेकंड.
Is my screen visible to everyone? Yes, yes. Okay, okay, okay. Okay, okay. Thank you, Nikhil sir. Okay. Then the question arises over here कि sir which book we have to refer? बराबर? कौन सी book हमको refer करना है? So these are some of the 7 standard books which you have to use for your applied hydraulic subject. बराबर? जो पहला book है वो मोदी है, बराबर? पीएम मोदी, एसएम शेख, अच्छी बुक है, मैंने भी यूज किया है, काफी अच्छी बुक है। सुब्रमण्यम स्वामी की भी बुक बहुत अच्छी है, एक एक खन्ना, बराबर? ये सब स्टैंडर्ड बुक्स है स्टूडेंट, बराबर? अब ये 7 बुक है, अब 7 के 7 बुक तो हम यूज नहीं कर सकते, करेक्ट? अपने लाइब्रेरी में सब बुक के कॉपीज अवेलेबल है, बराबर? जो मेन कॉपीज अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ, अपनी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करवा के दूंगा, फिलहाल ये लॉकडाउन पीरियड के लिए, बराबर? वो मेरा काम रहेगा, आपको पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉपी दूंगा, बराबर? इन पीडीएफ फॉर्मेट, बट वो अपने तक ही रखना, करेक्ट? ज्यादा, क्योंकि कॉपीराइट्स का क्लेम हो सकता है, उसके लिए सॉफ्ट कॉपी में आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स का दूंगा, उतने आप रिफर कर सकते हो, एंड बेस्ट मेरे नोट्स भी खुद के रहेंगे। ओके, ये तीनों बुक्स अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है, बराबर? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आरके बंसल, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर कोई स्टूडेंट को FM1 और FM2 थोड़ा सा भी डाउट है कि सर मेरा FM1 और FM2 अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर आरके बंसल, वन ऑफ द बेस्ट, बराबर? आरके बंसल की बुक जो है वो एक बेस्ट बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आरके बंसल की बुक ऐसी बुक है ना, जब आप सम्स करोगे ना तो उसके बाद आपको खुद इच्छा होगी कि यस अब मैं नेक्स्ट सम लेता हूं, अब मैं नेक्स्ट सम लेता हूं, अब मैं नेक्स्ट सम लेता हूं, मतलब इतनी अच्छी बुक है वो। नेक्स्ट इज राजपूत, बराबर? ये भी अच्छी बुक है। एंड थर्ड वन इज मोदी, जो मैं आपको बोला था रिकमेंडेड बुक में। ये 3 बुक जो है स्टूडेंट्स, काफी अच्छी बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। आप कोई भी एक बुक ले सकते हो इसमें से, कोई भी एक बुक लोगे आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने ये बुक के लिए ये टॉपिक, ये बुक के लिए वो टॉपिक यूज कर, ऐसा नहीं। सारे बुक्स के अंदर आपके सारे कंटेंट जो सिलेबस है मुंबई यूनिवर्सिटी का, वो इजीली कवर होता है कोई भी बुक लेने से। मेरा सजेशन रहेगा, आप मेरे से पूछोगे अगर आप लोग कि सर आप कौन सा बुक प्रीफर करोगे या कौन सा रिकमेंड करोगे, तो आई विल रिकमेंड यू बंसल, आरके बंसल, बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बराबर? एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नीचे कुछ रेड कलर में लिखा हुआ है रवि सर नोट्स। ये आपके सीनियर से पूछ सकते हो या किसी से भी पूछ सकते हो, ये सबसे अच्छी बुक है। ये अगर आपने रिफर कर लिया, बराबर, तो आपको कोई भी बुक की जरूरत नहीं है। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ। अगर मेरे वर्ड में इतना कमांड है, मतलब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि यस नोट्स में कुछ तो दम रहेगा, तो ही आपको बोल रहा हूँ ये नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स मिलेगा कहाँ? ये नोट्स आपको लेक्चर सारे बैठने पड़ेंगे, बराबर? मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग जितना कन्वीनियंट हो, जितना इजिली स्मूथली लेक्चर रन हो। आपको कुछ नहीं समझा, अब डायरेक्ट इंटरेक्ट करो, मैं कुछ चिल्लाने वाला नहीं हूँ, बराबर? Ravi sir, 5 minutes left. Yeah sir, we will finish our PPT, sir. Okay, So sir. these are the most important book. Hello, Yeah, hello. sir. Sir, Yeah, please sir. save your chat box. Sure sir. Okay. Okay. Most important point. What? अब मेरे, ये तो मेरी साइड से हो गया स्टूडेंट कि मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आपको बुक्स बता दिया, करेक्ट? अब आपकी साइड से क्या है? एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, अब ये मेरे साइड से हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके साइड से क्या है? फॉर योर प्रैक्टिकल्स आपको 100 पेज का एक स्मॉल नोटबुक बनाना रहेगा। एंड फॉर योर थियरी सब्जेक्ट, अगर अप्लाइड हाइड्रोलिक्स की बात करूं थियरी सब्जेक्ट, तो इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स 200 to 300 पेजेस, दो इट इज लॉकडाउन, आपके पास बुक नहीं रहेगा तो आप रफ बुक पे यूज करो, बराबर? बट मेंटेन अ प्रॉपर नोट्स। एक नोट बहुत कंपलसरी है आपको मेंटेन करने के लिए। तो फॉर दैट, अगर आपको पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, कहीं से आप नोटबुक अरेंज कर सकते हो, ब्लैंक नोटबुक, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आपको एक बहुत अच्छा नोटबुक मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा नोट्स मेंटेन हो जाएगा उसके अंदर। एंड प्रैक्टिकल के लिए एक छोटा सा स्मॉल नोटबुक, रफ नोटबुक, जिसके अंदर आप लोग क्या करोगे, रीडिंग का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। मैं वर्चुअल लैब यूज करने वाला हूँ आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, दिस आर द मोस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फिलहाल इतना समझ के लो। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, जो अपना 10 मिनट बाद एक सेशन वापस स्टार्ट करेंगे, इन दिस वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर थियरी पार्ट। हम लोग थियरी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये सारे पॉइंट्स कंसीडर हो गए, क्लियर हो गए सबको, एवरीवन? हाँ, अब आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस, क्वेरी, कुछ आ रहा है डाउट माइंड में?
माइक प्रॉब्लम है तो आप चैट में लिख सकते हो, कुछ भी क्वेरी आ रहा है आप बोल सकते हो, कुछ भी क्वेरी आ रहा है तो आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स। एनी क्वेरी? इज एनीवन रेजिंग देयर हैंड? कोई डाउट आ रहा है? रोल नंबर 45 और बाय मिस्टेक हुआ है? Sir, roll number 17, Faisal Khan also raised the hand. Yeah, sir. Faisal Khan also raised the hand and roll number 45 also raised the hand. Is there any query, students? कुछ भी डाउट आ रहा है सर? ये नहीं समझा यार सर, थोड़ा और डिटेल में बताओ, ऐसा कुछ भी डाउट आ रहा है? बी क्लियर। सर प्रैक्टिकल कैसे होंगे सर अपने? प्रैक्टिकल कैसे होंगे? अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल जो होने वाले, मैंने एक वर्चुअल लैब एक देखा है, वो वर्चुअल लैब के थ्रू हम लोग एक्चुअल ऐसे व्यू आएगा कि हम लोग लैब के अंदर ही बैठे हैं, बराबर। वो वर्चुअल लैब के थ्रू मैं आपको सारे प्रैक्टिकल्स कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड सेकंड इज एनपीटीईएल वीडियो एंड थर्ड वन इज वाया एनिमेशन। ये तीन चीज यूज करके हम लोग अपने सारे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं फिलहाल के लिए, और अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग कॉलेज में जाके मैं आपके लिए वीडियोस बना सकता हूं टिल लॉकडाउन पीरियड, बराबर। ये लास्ट ऑप्शन रहेगा, बट वर्चुअल लैब के थ्रू मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट करने को। एक वर्चुअल लैब होगा, मैं आपको अवेयर करवा दूंगा वो क्या है कैसे है। बिफोर स्टार्टिंग और प्रैक्टिकल अपने को थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, तो हम लोग को थियरी जाना पड़ेगा पहले, करेक्ट स्टूडेंट्स? ओके, डाउट क्लियर हुआ? कैसे होगा प्रैक्टिकल? वाया वीडियो, एनपीटीईएल वीडियो एंड वर्चुअल लैब, बराबर। ये दो और थर्ड एनिमेशन यूज करना पड़ा तो वो करेंगे। ये तीन की वजह से अपने प्रैक्टिकल हम लोग एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। डन एवरीवन? इज देयर एनी मोर क्वेरी? कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में स्टूडेंट्स? नो सर। नो, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, जितने भी स्टूडेंट्स है इसमें से डायरेक्ट हाँ नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आफ्टर एवरी लेक्चर। अभी वाया व्हाट्सएप और वाया मूडल, अगर आप मूडल भी यूज करोगे तो आपको मूडल अगर एक्सेस हो गया रहेगा तो वहां पे भी आपको सारे पीपीटी, जो भी पीपीटी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वो सारे पीपीटी आपको वहां मिलेंगे। पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वो मेरा लुकआउट रहेगा, बराबर। नोट्स देने का काम मेरा रहेगा, मैं आपको सारे नोट्स दूंगा। बस आपकी तरफ से इतना करना कि वॉट एवर आई एम टीचिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे 1.5 और जो भी अपना सेशन चलेगा 45 मिनट्स 40 मिनट्स का जो भी सेशन रहेगा, इन दैट वॉट एवर आई एम टीचिंग प्लीज नोट डाउन करना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये गिव एंड टेक रिलेशन होगा। मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूं तो आपको अच्छे से लेना पड़ेगा, देन ओनली इट विल हैव अ ग्रेट बेनिफिट फॉर अस, बराबर। तो ये आपको करना है, ये आपका लुकआउट रहेगा। डन। Okay, Nikhil sir, we will stop this session. Yes, sir. You have to end this session, and again we will meet at 11:50. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, everybody is noted that. Again, we will meet at 11:50. 11:15 we will meet. 11:50 50. 11:50 we will meet again. Again, same ID and same password here to rejoin. Okay. Please note it down. Same ID और same password with a blank notebook. अगर आज के दिन नोटबुक नहीं है तो कल मंगा लो नोटबुक, बराबर। कल और एक कैलकुलेटर, पेन एंड पेंसिल मैंडेटरी है स्टूडेंट।